مسیح میں میرے عزیزو، سنبل نورین حاضر ہے پروگرام یسوع سنگ سویرا کے ساتھ، اور آپ کو خوش آمدید کہتی ہے۔ جنہوں نے آج ہمیں جوائن کیا ہے، ہم انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس پروگرام میں ہم خداوند کے کلام کو مختلف پاسٹر صاحبان کے ساتھ مل کر شیئر کرتے ہیں تاکہ آپ تک پہنچے، اور مقصد صرف یہ ہے کہ صبح کا آغاز جیسے ہم رات کو سونے کے بعد یا سونے سے پہلے خوابوں کی دنیا میں گم ہو جاتے ہیں، اور سونے سے پہلے خداوند یسوع مسیح کو یاد کر کے، اپنے رب کو یاد کر کے، یہوہ یری کو یاد کر کے سوتے ہیں، تو پھر ہماری خوابوں کی دنیا بھی حسین ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح سے ہم چاہتے ہیں کہ صبح کا آغاز بھی آپ یسوع مسیح کے نام سے کریں، اور خداوند کو یاد کرتے ہوئے اپنے دن میں تمام کاموں میں جو بھی آپ کے کام ہیں مصروف ہوں۔ تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ خداوند کا ساتھ آپ کے ساتھ رہے، اور یہ کلام کا حصہ جو آپ سن کر جاتے ہیں آپ کی زندگیوں میں کام کرے۔ تو اسی مقصد کے ساتھ ہم یسوع سنگ سویرا پروگرام لے کر ہر صبح آپ کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں، اور آپ کو نہایت ہی پیار کے ساتھ، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ گڈ مارننگ کہنا چاہتے ہیں۔ آئیے ایک گیت دیکھتے ہیں۔ جی ناظرین، گیت آپ نے دیکھا اور سنا، بہت اچھا گیت تھا۔ خداوند تمام ٹیم کو اور اس پرستار کو بہت ساری برکات سے نوازے، اور اب چلتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف جس میں ہم خداوند کے کلام کو شیئر کرتے ہیں، اور جیسے کہ اسکرین پر بھی لکھا ہوا آ رہا ہے، نجات، سالویشن، اور اسی ٹاپک کو لے کر ہم آپ کے ساتھ بات چیت کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ آپ کے سوالات بھی ہم تک پہنچتے رہیں۔ تو آئیے پاسٹر صاحب کو بی ٹی ایل کی جانب سے، آپ کی جانب سے اور میری جانب سے خاص طور پہ خوش آمدید کہتے ہیں، اور پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں۔ پاسٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ ونس اگین تھینک یو سو مچ بات جی، اور گڈ مارننگ آل دا ویورز، جہاں جہاں بھی آپ بیٹھ کے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، اور آج کے اس دن کو آپ کے لیے اور زیادہ خوبصورت بنائے۔ تھینک یو، بہت شکریہ۔ پاسٹر صاحب، پچھلے پروگرام میں آپ نے ایک آیت ہمیں پڑھنے کو دی تھی جس میں لوکا 19 باب 10 آیت، تو میں چاہتی ہوں کہ اس آیت کو دوبارہ سے پڑھیں۔ بالکل پڑھیں جی۔ جی، تو ناظرین آپ بھی دیکھ سکتے ہیں بائبل میں سے، کلام میں یوں مرقوم ہے، کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ آمین۔ آمین۔ اس میں ہم آگے بڑھتے ہیں کہ بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ یرو کے شہر کے بارے میں تو ہم نے بہت پڑھا ہے، بہت مشہور ہے، اکثر گیتوں میں بھی کہتے ہیں یرو کی دیواریں ساری گرتی جاتی ہیں۔ تو خداوند یسوع مسیح یرو میں داخل ہو رہے تھے، اور یرو میں ایک شخص تھا جس کا نام زکئی تھا۔ زکئی کی کہانی عزیزو آپ سب لوگ جانتے ہیں، یہ کوئی بڑی مشہور کہانی ہے بائبل میں سے، ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، سب جانتے ہیں۔ جی بائبل اب ہم سنڈے اسکول سے اس کہانی کو سیکھتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ تو زکئی جو تھا وہ ایک شخص تھا جو کہ یرو میں رہتا تھا، بہت امیر تھا، بہت بااثر تھا۔ اس وقت میں زکئی کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹیکس کلیکٹر تھا۔ صحیح۔ اور آج اگر آپ دیکھیں تو ایک کلیکٹر ہم دیکھتے ہیں وہ بہت اونچے رینک پہ ہوتا ہے، ایک آفیسر ہے۔ تو زکئی بھی جو تھا وہ یہی تھا، بہت دولت مند تھا، بہت بااثر تھا، طاقتور تھا، پیسہ بھی بہت تھا، لیکن اس کی زندگی میں جو ہے نا کچھ چیزوں کی کمی تھی۔ پیسہ کے ساتھ اس کی زندگی میں خوشی نہیں تھی، اس کی زندگی میں کوئی جوائے کہتے کہ نہیں تھا۔ تو جب زکئی کے بارے میں دیکھتے ہیں تو بائبل ہمیں کہتی ہے کہ ہم روپے پیسے سے خوشیاں نہیں خرید سکتے۔ ہاں، لیکن خام خیالی آج کل بھی اور ایک عرصہ دراز سے یہی چلتی آ رہی ہے کہ شاید پیسہ آ جائے گا تو خوشی آ جائے گی، پر ایسا واقعی ہے نہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ ہے لیکن ان کے پاس سکون نہیں ہے۔
कुछ लोग रोटी के पीछे भागते हैं, कुछ लोग रोटी खा के भागते हैं। हाँ सही बात। तो इस तरह इंसान किसी भी हाल में मुतमिन नहीं रहता। लेकिन बाइबल हमें ये बताती है कि हम पैसे से खुशियाँ, हकीकी खुशियाँ नहीं खरीद सकते। हकीकी खुशी सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह में है। हाँ जी। और बाइबल हमें बताती है कि ये जो दिल है हमारा, इस हमारे जिस्म में एक हिस्सा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज वो दिल है। तो ये जो दिल है ये तो सिर्फ हमारा दिल यीशु के लिए होना चाहिए, क्योंकि उसने हमारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने बहुत बड़ी कीमत दी। उसने सलीब पर अपनी जान को कुर्बान करके अपना लहू बहाकर हमें खरीद लिया है। सही। तो इसलिए हमारा ये दिल जो है ये खुदावंद यीशु मसीह का होना चाहिए। और बाइबल हमें बताती है कि जो ज़कई था वो एक ऐसा शख्स था जो शहर के एक खास मकाम पर बैठता था और वहां से वो ना टैक्स कलेक्ट करता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि उसने भी सुना, यीशु की शोहरत उस इलाके में बहुत ज्यादा थी, लोग यीशु को बहुत जानते थे। उसने भी सुना कि यीशु आ रहा है। लेकिन ज़कई ताकतवर था, ज़कई दौलतमंद था, लेकिन उसके साथ ज़कई छोटे कद का भी था। उसने सुना यीशु आ रहा है, लेकिन अगर हम बाइबल को पढ़े, हम देखें तो हमेशा यीशु मसीह के इर्द गिर्द बहुत सारे लोग होते थे। हाँ, बिल्कुल। यीशु मसीह हमेशा लोगों से घिरे रहते थे। तो अब एक छोटे शख्स का उसको देखना उस भीड़ में से कि यीशु कौन है, मुश्किल था। लेकिन ज़कई ने अपने दिल में ठान लिया कि मैंने आज जो मर्जी हो, मैंने आज यीशु को देखना ही देखना है भाई, किसी तरह भी आज मैंने यीशु को देखना है। अब एक बहुत बासर था, एक ऑफिसर था, समझ लें 22वें ग्रेड का ऑफिसर है, और वो यीशु को देखना चाहता है, लेकिन यीशु घिरे हुए हैं लोगों से। तो उसने देखा कि यीशु आज इस रास्ते से गुजरने वाले हैं। और इस्राएल में अगर हम देखें तो जो उनका जो ड्रेस था, एक खास ड्रेस था कि वो पूरा चोगा पहनते थे, और उसको उठाना जो था ना वो बहुत शर्म की बात समझी जाती थी। लेकिन ज़कई ने इस बात की परवाह नहीं की कि मैं बहुत बड़ा ऑफिसर हूँ, मैं बहुत अमीर हूँ, लोग क्या कहेंगे। उसने कहा आज यीशु को देखना है। तो मैं अगर देखता हूँ कि हम अगर चोगा पहन के भागेंगे तो हम तो तेज भाग नहीं सकते, हम तो गिर जाएंगे। तो मुझे जो लगता है तो फिर कि उसने अपना चोगा उठाया होगा, तो फिर वो भागा भी होगा, और फिर वो दरख्त पे भी चढ़ गया। हाँ जी, हाँ, दरख्त पे चढ़ के फिर उसने यीशु मसीह को देखा। जी, तो आइए एक गीत भी देखते हैं। जी नाज़रीन, तो कहानी सुन रहे थे आप ज़कई की। आइए फिर से उसी कहानी की तरफ पढ़ते हैं। हाँ जी। तो हम बात कर रहे थे कि उसने ये नहीं सोचा कि मैं अब अपना वो चोगा उठाऊंगा तो मेरी टांगें, क्योंकि वो शर्म की बात समझी जाती थी इसराइल में। अगर हम हिस्ट्री पढ़ें तो फिर हमें पता चलता है। हाँ जी। लेकिन उसने तेज भागने के लिए, हो सकता है उसने अपनी वो चोगा उठाया, उसने भागा। अब उसके लिए जो अगली प्रॉब्लम थी वो थी दरख्त, कि दरख्त पे चढ़े कैसे। अब वहां पे कोई शख्स तो नहीं था कि जो उसको ऊपर उठाता, पता नहीं वो कैसे दरख्त पे चढ़ा, उसकी टांगे भी जख्मी हो गई होंगी, क्योंकि सबकी तवज्जो तो यीशु मसीह की तरफ थी। हाँ जी, वहां पे ज़कई को कौन देख रहा था। लेकिन ज़कई किसी तरह भी करके ऊपर चढ़ गया। अब ज़कई को यह भी यकीन था कि आज यीशु ने यहीं से गुजरना है। लेकिन इसमें जो बहुत एक इम्पोर्टेंट बात जो मैंने सीखी, शायद और लोगों ने भी उस बात को नोट किया होगा, लेकिन जो बात मैंने नोट की कि यीशु मसीह अब आ रहे हैं, यीशु मसीह उस तरफ जा रहे हैं, और यीशु मसीह भीड़ में घिरे हुए हैं। लोग कोई इधर से उनको पकड़ रहा है, कोई इधर से उनको छूने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जब यीशु उस मकाम पर पहुंचे कि जहां पर ज़कई दरख्त पर बैठा था, चढ़ रहा था, तो वहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात खुदावंद यीशु मसीह ने कही। छोटी सी बात है लेकिन मैं उसको बहुत इंपॉर्टेंट बात समझता हूँ जी, कि ज़कई
खुदावंद यीशु मसीह ने ऐसे ऊपर की तरफ देखा और खुदावंद यीशु मसीह ने ये नहीं कहा ऐ शख्स नीचे उतरा या तू ऊपर क्या कर रहा है, नीचे उतरा। लेकिन वहां पे खुदावंद यीशु मसीह ने एक बहुत खूबसूरत बात की। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा ऐ ज़क्कई नीचे उतरा। मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट बात है कि खुदावंद यीशु मसीह उससे पहले शायद यरूह में आए भी नहीं। खुदावंद यीशु मसीह ये नहीं जानते थे कि वहां पर ज़क्कई नाम का शख्स महसूल लेने वाला है। लेकिन फिर भी खुदावंद यीशु मसीह ने उसको उसके नाम से पुकारा। क्या बात। तो इससे हमें इस बात का पता चलता है नाजरीन कि खुदावंद यीशु मसीह हमें हमारे नामों से जानता है, नाम बनाम जानता है। हर एक शख्स को नाम बनाम जानता है। अगर वो ज़क्कई को जानता है तो फिर वो इमरान को भी जानता है, और अगर इमरान को जानता है तो फिर सुंबल को भी जानता है। तो वो हमें नाम बनाम जानता है। और ज़क्कई जब ऊपर बैठा था तो खुदावंद यीशु उसको नाम पुकार, उसने कहा ए ज़क्कई नीचे उतरा, आज तेरे घर में मेरा जाना जरूर है। और मैं ये समझता हूँ, जो मेरी नाकस अकल कहती है कि खुदावंद यीशु मसीह उस दिन यरूह में सिर्फ ज़क्कई को ही मिलने आए थे। हाँ बिल्कुल कह सकते हैं कि अभी वो एंटर ही हुए तो खुदावंद यीशु मसीह उस दिन सिर्फ ज़क्कई को ही मिलने आए थे। और आज भी हमारी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें खुदावंद यीशु मसीह से दूर करती हैं। हम मुख्तलिफ तरीकों से चाहते हैं कि हम पैसा कमाएं, बहुत किसी भी तरह इल्ल हुक और क्रुक से, लेकिन हमारी जिंदगी का जो फोकस है ना, वो आज भी खुदावंद यीशु मसीह ही होना चाहिए। हमें खुदावंद यीशु मसीह के पास आने के लिए जितनी मर्जी स्ट्रगल करनी पड़े, हमें दौड़ लगानी चाहिए। इस बात से हमें ये पता चलता है कि खुदावंद यीशु मसीह के पास आने के लिए हमें दौड़ना पड़ता है। इस बात से हमें इस बात का इल्म होता है कि खुदावंद यीशु मसीह के पास आने के लिए हमें ऊंचाई पर चढ़ना पड़ता है, हमें पहाड़ों पर चढ़ना पड़ता है, हमें स्ट्रगल करनी पड़ती है खुदावंद यीशु मसीह के पास आने के लिए। और खुदावंद यीशु मसीह तो हर वक्त अपनी बाहें फैलाए वहां पे खड़े हैं। वो तो कहते हैं इमरान आजा, आज मेरा तेरे घर में जाना जरूर है। तो यही हुआ, खुदावंद यीशु मसीह ने उसको देखा और ज़क्कई तो पहले ही उससे मिलना चाहता था। तो ज़क्कई की तो खुशी की इंतहा नहीं रही कि ये क्या हो गया भाई, आज तो यीशु मुझे खुद कह रहे कि मैं तेरे घर में जाऊंगा। और बिल्कुल आज की तरह तब भी बहुत सारे लोग थे जो कह रहे थे ये लो जी, अब यीशु मसीह इस गुनाहगार के घर पे जाएंगे, ये मसूल लेने वाले के घर पे जाएंगे। क्योंकि जो यहूदी थे वो नफरत करते थे उनसे, क्योंकि वो उनसे पैसा लेकर रोमियों को देता था। रोमन्स, असल में तो वो रोमन्स का ऑफिसर था लेकिन है यहूदी था। लेकिन जो यहूदी थे उससे नफरत करते थे इस बात से कि ये हमें लूटता है, तो उसको अच्छा नहीं समझते थे। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने कहा आज मेरा तेरे घर में जाना जरूर है, और खुदावंद यीशु मसीह उसके साथ चल पड़े। लेकिन यहां पर अगर हम इस बात को देखें तो जब ज़क्कई अपने घर में गया, बाइबल में से अगर हम इस बात को पढ़ें तो सबसे पहला काम उसने क्या किया था? कि जब खुदावंद यीशु मसीह उसके साथ पहुंचे, यहां पर लिखा और ज़क्कई ने खड़े होकर खुदावंद से कहा ए खुदावंद देख मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूँ। पहला ही काम, ये पहला काम उसको कर रहा है ना। अब खुदावंद यीशु मसीह ने तो उसको नहीं बोला कि तू बेईमान है भाई। मैं तो ये कहता हूँ, मैं चैलेंज देता हूँ कि मुझे पाक कलाम में से कभी लिख के दें कि खुदावंद यीशु मसीह ने किसी को मुजरिम ठहराया। खुदावंद यीशु मसीह ने कभी किसी को नहीं मुजरिम ठहराया, ज़क्कई को भी नहीं कहा। बस अब बड़ी अच्छी बात की है आपने। बस ऐसे ही कुछ दुनियावी बातें ना मेरे जहन में भी जुम्बिश करती रहती हैं। आपने बड़ी अच्छी बात की है कि खुदावंद यीशु मसीह ने किसी को मुजरिम नहीं ठहराया। हम भी मसीही हैं, अपने आप पर गौर करें, क्या हम भी ऐसा ही करते हैं, किसी को मुजरिम नहीं ठहराते? आइए एक गीत देखते हैं। जी नाज़रीन, वेलकम बैक।
और आपने बहुत ही खूबसूरत गीत देखा है, सुना है, और हम सबको कलाम का कुछ हिस्सा गीतों के हवाले से भी देखने और सुनने को मिलता है। ज़रूर इन अल्फाज पर भी गौर किया करें, क्योंकि ये जो शायर हजरात लिखते हैं वो ज़ाहिर है कि कलाम में से ही लिखते हैं, और वो हमारे लिए बरकत का बायस हमेशा रहता है। तो आइए जो कलाम हम सुन रहे हैं उसकी तरफ फिर आगे बढ़ते हैं। जी पास्टर साहब, आप बड़ी अच्छी बात कर रहे थे कि खुदावंद यीशु मसीह ने किसी को भी मुजरिम नहीं ठहराया, जी बिल्कुल। और मैं ज़कई को तो भी उसने हाँ मुजरिम नहीं जी, ठहराया। उसने खुद ही सोचा कि मैं अपना माल जो है वो दे दूं। असल में बात ये है यहाँ पे बाजी, बात ये हो रही है कि जब खुदावंद यीशु मसीह आपकी ज़िंदगी में आता है ना, हाँ, तब्दीली खुद ही आ तो जाती है। तब्दीली खुद ही आ जाती क्या है। बात है, कोई शक नहीं। मेन चीज़ तो ये है कि हम उसको अपनी ज़िंदगी में लें, हम्म, और जब हम उसको अपनी ज़िंदगी में लेते हैं तो फिर हमारे अंदर से ही खुद ही आवाज़ आना शुरू हो जाती है। वो हमें नहीं कहता, क्या बात है। खुदावंद यीशु मसीह नहीं हमें कहता कि तू ये है, तू ये है, तानाज़नी नहीं करता। तानाज़नी उसकी वो उसका उसका ये काम ही नहीं है। हम्म, वो उसने सिर्फ इतना बोला कि ए ज़कई, मेरा आज तेरे घर में जाना जरूर है। और ज़कई की तो ये ख्वाहिश थी, वो तो सिर्फ उसको देखना चाहता था। अब उसको तो बोनस वो मिल गया। ये हाँ, वो तो सिर्फ यीशु को देखना चाहता था और कि यहाँ से घर जी की भाई आवाज़। ये यीशु कौन है। मैं भी, क्योंकि बहुत सारे लोग यीशु को कहते हैं कि जादूगर है। उस दौर में यीशु को जादूगर भी बोला जाता था। जी ये ऐसे लोगों को छूता है तो लोग शिफा पा जाते हैं, इसके कहने से सब कुछ हो जाता है। तो तजस्सुस तो होता है। और फिर एक ऐसा शख्स, लेकिन एक बात है कि उसके दिल में ईमान पैदा हो रहा था। ज़कई हालांकि महसूल लेने वाला था, लेकिन वो यीशु के, और हम समझते हैं कलाम कहता है कि ईमान सुनने से पैदा होता है, और सुनना खुदा के कलाम से। तो असल में वो एक प्रोसेस चल रहा था ना, कि ज़कई खुदा यीशु मसीह के बारे में सुन रहा था। हो सकता है उसके शहर में भी बात आई हो, यार वहाँ पे यरूशलेम में है या किसी और इलाके में है कोई यीशु है, तो वो बहुत सारे मौजज़ात करता है, उसने ये किया, उसने वो किया। तो उसके दिल में एक तजस्सुस पैदा हो रहा था, और ये तजस्सुस नहीं था, मैं इसको ईमान कहूँगा, सही, कि उसके दिल में ईमान पैदा हो रहा था कि मैंने खुदा यीशु मसीह को देखना है। आज भी हम बहुत सा दफा गिरे होते हैं, ऐसी चीजों से हम गिरे होते हैं। खुदावंद यीशु मसीह तो तब लोगों में गिरे होते थे, लेकिन आज अगर मैं आज की बात करूं तो हम गिरे होते हैं। खुदावंद, जब मूसा को खुदा मिला ना, तो मूसा ने पूछा कि तेरा नाम क्या है, मैं क्या जाके बताऊं। तो खुदा ने कहा कि बताना कि मैं हूं सो हूं। अगर हम कलाम में से पढ़े तो खुदावंद यीशु मसीह हर जगह पे सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह ही ये अल्फाज यूज कर रहे हैं, मैं अच्छा चरवाहा हूं, मैं दुनिया का नूर हूं। तो मैं कहने वाला तो सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह है। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि हम कैसे उसके नाम को अपने साथ, या हम इस्तेमाल करते हैं उसका नाम कि मैं, तो हम कुछ नहीं कर सकते जब तक कि खुदावंद यीशु मसीह ना कुछ करे। बहुत अच्छी बात है, क्या बात। हमारे बहुत सारे ऐसे, मेरे माजत के साथ हमारे ऐसे भाई हैं, मेरे खादम हैं, खिदमत में हैं, बहुत सारी दफ़ा वो जोशी में यही कह देते हैं, जी मैंने वो मौजज़ा कर दिया। हाँ, तो मौजज़ा तो सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह करता है। हाँ, हम तो सिर्फ एक वसीला हैं। तो ज़कई के दिल में ईमान पैदा हो रहा था, उसने कहा मैं यीशु को देखूंगा, उसने परवाह नहीं की। आज भी हमें परवाह नहीं करनी। जब हमने यीशु को मिलना है ना, तो फिर हमने परवाह नहीं करनी किसी की। आज ये चार अल्फाज इन्होंने दुनिया को घेर रखा हुआ है कि लोग क्या कहेंगे। चार अल्फाज है। ओह, क्या बात कह दी आपने। इसका तो बहुत बड़ा इशू है हमारे एशिया में, तो बहुत ज़्यादा। यहाँ पे हम देखते हैं ये इशू इनके दरमियान नहीं है, वो अपना जो भी काम होता है वो उस लिहाज से करते हैं कि ये अच्छा है या बुरा है। वो ये नहीं सोच के करते कि वो क्या कहेगा। लेकिन हमारा मसला ये होता है, कुछ भी हमने पानी का ग्लास भी उठाना है तो हमने इसलिए नहीं उठाना कि इसका इस तरह सिखाया गया, हमने कहना जो साथ बैठा ना वो कहेगा तूने कैसे उठाया ये। तो मैं इसी बात पे बात करूंगा कि ये चार अल्फाज ने हमारे माशरे को खराब कर दिया है। क्या बात। एक गलत सिमत में ले गया है कि लोग क्या कहेंगे। मैं ये कहता हूं कि आप ये ना सोचे कि लोग क्या कहेंगे, आप ये सोचे कि खुदा क्या कहेगा। इम्पोर्टेंट बात ये है और मुझे किस तरह जाना है खुदा के पास। सही बात है। मैंने साइकिल के साथ जाना है, मैंने पैदल जाना है। हम यहाँ पर देखें तो लोग चर्च में आते हैं, कुछ लोग पैदल आते हैं, कुछ लोग गाड़ी में आते हैं, कुछ साइकिल में आते हैं। तो ये एक लगन है। सही बात है। और यही लगन ज़कई में थी।
क्या बात, बहुत उस वक्त उसको और कोई बात नहीं सूझी, उसने दौड़ लगा दी। हाँ जी, बिल्कुल। उसने कहा मैं दरख्त पे चढ़ जाता हूँ, चढ़ गया। खुदावंद यीशु मसीह को देख लिया, ना सिर्फ देख लिया बल्कि उसको अपने घर में मेहमान भी बना लिया। जी, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया पास्टर साहब एक दफ़ा फिर आपकी आमद का, और हमें उम्मीद है कि अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी। नाज़रीन, आपके साथ भी ज़रूर मुलाकात होगी खुदावंद की इजाज़त से और खुदावंद की मदद से। पास्टर साहब फिर हमारे साथ मौजूद होंगे। तो पास्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। खुदावंद आपको बरकत दे और व्यूअर्स आपको भी खुदावंद कसरत से बरकत दे। थैंक यू। नाज़रीन, प्रोग्राम यीशु संग सवेरा में आज फिर बात हुई निजात के हवाले से, और आज हमने ज़कई की कहानी सुनी। इसमें एक बात मेरे जहन में भी आती है। सबसे पहले ज़कई ने तैयारी की, जैसे कि पास्टर साहब ने भी कहा कि उसके दिल में ईमान पैदा हो रहा था। अगर हम ज़हनी तौर पर, दिली तौर पर तैयार नहीं होते तो हम यीशु मसीह की तरफ बढ़ेंगे नहीं। आज बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो आप देखते हैं, हमारे बहुत सारे मसीही चैनल्स हैं जिन पर आप खुदावंद यीशु मसीह के हवाले से, खुदावंद के हवाले से कलाम को सुनते हैं, गीतों को सुनते हैं, लेकिन क्या हम उन गीतों से, उन कलाम के हिस्सों से जो हमारे कानों में सुनाई देते हैं, या जिनको हम सुनते हैं, या जिनको हम थोड़ा सा सुन के आगे कर देते हैं, असर पैदा कर रहे हैं? अगर वो असर पैदा नहीं कर रहे तो इसका मतलब हम दिली तौर पर और ज़हनी तौर पर तैयार नहीं हैं। तो सबसे पहले ज़रूरत है ज़हनी तौर पर और दिली तौर पर तैयार होने की, क्योंकि वक्त नज़दीक है। खुदावंद आने वाले हैं और वही उनके साथ जाएंगे जो तैयारी कंप्लीट कर चुके होंगे, जो तैयार होंगे। तो आइए इस बात पर गौर करें और फिर मिलेंगे जल्द। आपकी राय हमारे लिए बड़ी अहमियत की हामिल है, इसलिए आप स्क्रीन पर देख रहे हैं डिटेल्स। हमें ज़रूर अपनी राय से नवाजिए, हमें इंतज़ार रहता है। खुदावंद आपके साथ हो, मसीह में शाद व आबाद रहें। खुदा हाफिज़।